Today we will start the discussion for the class 10 science chapter light, reflection and diffraction. There are some common phenomena. First we will discuss about them before starting the main content of the chapter. ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए. आप अपनी लोअर क्लासेस में इन सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ चुके हैं, इन बातों को पढ़ चुके हैं, बट मेन कंटेंट जो हमारा चैप्टर का है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार इनका एक स्मॉल रिकैप देना चाहूँगा. हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइट. सबसे पहले बात ये आती है कि ये लाइट है क्या, व्हाट इज लाइट. तो हम जर्नल वे में कह सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see the things all around us. हमने यहां बोला लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. क्वेश्चन कम्स which type of energy it is. Light is a electromagnetic energy. You can say it is a electromagnetic radiation. If you go for the electromagnetic radiation, then you will get a very big spectrum. Visible light is a very small portion from this. Later on I will discuss about little bit the electromagnetic spectra and the wavelength of the visible light. All the electromagnetic radiation we are not able to see. हम सारा नहीं देख सकते हैं, उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही हम देख पाते हैं. तो जैसा हमने कहा, light is a form of energy which enables us to see the things all around us. Light is a electromagnetic radiation. Which type of the energy it is? It is a electromagnetic radiation. हमने यहाँ पर बोला कि light enables us to see the things around us. See the things around us. क्या लाइट को आपने कभी देखा है? मैंने देखा, आपने देखा, किसी और ने देखा? सिंपल आंसर आएगा नहीं. है ना इंटरेस्टिंग थिंग्स. हम लाइट को नहीं देख सकते, बट ये लाइट हमको आसपास की चीजों को देखने में हेल्प करती है. जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, सन, उससे लाइट आ रही है और उसकी हेल्प से हम आसपास की चीजें देख सकते हैं. आप स्क्रीन पे ये इमेज भी देख रहे होंगे. यहाँ पर सन की लाइट आ रही है, इस फ्लावर पॉट पे पड़ रही है और हम उसको देख पा रहे हैं. जब लाइट उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज तक पहुंच पा रही है. हम एग्जाम्पल इस कमरे का ले सकते हैं. आप जिस कमरे में बैठे हैं वहां पे ले सकते हैं, जहां पे ये वीडियो आप बैठ के देख रहे हैं. यहाँ पे जो लाइटें हैं, when they are falling on my face and reflecting back to you, then you are able to see me. आपके कमरे में जो LED, CFL या जो भी चीज ग्लो कर रही है, they are the source of light. उनसे जब लाइट आ रही है, आपके कमरे पे जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रखे हैं जैसे टेबल, चेयर, सोफा, बोर्ड्स, मिरर, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, उनसे लाइट रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक होके आपके आईज तक जब पहुंच रही है, तब आप उसको देख पा रहे हैं. तो लाइट enables us to see the things around us. Though light is totally invisible, हम लाइट को देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो हमको आसपास की चीजों को देखने में मदद करती है. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें अपनी खुद की लाइट होती है, we can say sun, burning candle, CFL, glowing bulb. They are all the luminous objects. Then what are the luminous objects? Luminous objects are those objects which have their own light. For example, we can say sun, glowing bulb, burning candle, etc. But a lot of things all around us, might be you all have observed, we are able to see them only in one condition, when the light falls on them and reflects, bounce backs up to us, up to our eyes, then only we are able to see. Like that आप कह सकते हो आपके कमरे में जो चेयर रखी है, सोफा रखा है और जो डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, जब उन पे लाइट पड़ती है तो हम उनको देख पाते हैं, जब उन पे लाइट नहीं पड़ती है तो हम उनको नहीं देख पाते हैं. It means they are the non-luminous source of object. Then here, what is a non-luminous source of object?
light enables us to see the objects which do not emit their own light are non-luminous objects. Like that, we can say chair, table, book, lot of things are all around us. They all are the non-luminous objects. We can see them only when the light reflects back and enters to our eyes. Then only we are able to see them. Light reflects back and enters our eyes. Objects are seen by us. They are the non-luminous objects. Then simply here we said that light is a form of energy which enables us to see the things all around us. Then which type of energy light is? Light is an electromagnetic radiation, and in that electromagnetic radiation very small portion is the visible light. Full electromagnetic radiation spectra we are not able to see. Our sense organs are not responsible for them. Luminous objects are those objects which have their own light. Non-luminous objects are those objects which have not their own light. They are visible when the light falls on them and reflects or bounce back up to our eyes. Then we are able to see. One thing might be you all have also observed, मैंने भी देखा, आपने भी देखा, लाइट के बीच में जब कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट आ जाता है, जैसे कोई बिल्डिंग, कोई ट्री, ब्लैक बोर्ड, अदर ऑब्जेक्ट, तो उसके अपोजिट साइड में शैडो बन जाती है. तो व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ. इस बात से हम यही कह सकते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ. Then light traveling in a straight line is represented by the ray of light. Then here we can define what is a ray. A ray of light is a path followed by the light energy in a transparent medium. You can see the image also on your screen. अब इसी के बेसिस पर हम बीम की डिफिनेशन दे सकते हैं. व्हाट इज अ बीम? अ ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज ऑफ द लाइट एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. Here lot of rays are there. Their collection is called beam. I will repeat these words again. A group of parallel rays of the light emitted by the source of light is called beam of light. चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. हमने यहाँ पे लाइट का डिस्कशन स्टार्ट किया, तो सिंपली हमने देखा लाइट क्या होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, शैडो कैसे फॉर्म होती है, रे क्या है, बीम क्या है. बट व्हाट द स्टडी ऑफ लाइट कॉल्ड? Study of the light is called optics. Then what is the optics? It is the branch of physics which deals with the study of light. Optics mainly we can categorize in three main parts. First, you can say geometrical optics or ray optics. अभी जो क्लास 10 में हम लोग सारी चीजें डिस्कशन करेंगे मेनली वो रे ऑप्टिक्स है. जब हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो मेनली वो रे ऑप्टिक्स है. तो ऑप्टिक्स का जो हमने कैटेगराइजेशन करना शुरू किया, इसको 3 पार्ट में हम तोड़ सकते हैं. तो सबसे पहला जो इसका पार्ट आ रहा है उसको हम कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स. सेकेंड, वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स. थर्ड हम इसको कह सकते हैं क्वांटम ऑप्टिक्स. यहां पर जो आपका वेव ऑप्टिक्स है और क्वांटम ऑप्टिक्स है ये हम लोग अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. यहां पर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उनका दे दूंगा और बहुत डिटेल में हम इन सब चीजों के बारे में अभी यहां पर नहीं जाएंगे. आने वाली वीडियोस में हम लोग अपना सारा कंसंट्रेशन, सारा डिस्कशन सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में करेंगे जो हमारे पर्टिकुलर क्लास 10 के सिलेबस में है. अब यहां पर जो सबसे पहली कैटेगरी हमने दे रखी थी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स.
देन जैसा मैंने कहा, इट डील्स विद द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. These two topics are the main discussion of our chapter. Now, second, wave optics or physical optics. It is concerned with the nature of light and deals with the interference, diffraction and polarization. ये कुछ ऐसे फिनोमिनाज हैं जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन तो मैं यहाँ पे दे दूंगा, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है. इनको हम अपने हायर क्लासेस में क्लास 12 में डिस्कशन करेंगे. देन वेव ऑप्टिक्स मेनली डील्स, यू कैन से दैट इट इज द कंसर्न विद द नेचर ऑफ द लाइट एंड डील्स विद द इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन. थर्ड पार्ट, दैट इज योर क्वांटम ऑप्टिक्स. For the quantum optics, we can say it deals with the interaction of the light with the atomic entities of matter such as photoelectric effect and atomic excitation. ये आज का जो प्रेजेंट मॉडर्न फिजिक्स का सबसे हॉट टॉपिक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि क्वांटम ऑप्टिक्स या क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, उसका ये पार्ट है क्वांटम ऑप्टिक्स. यहाँ पर हम लाइट का एक हायर वर्जन, हायर फिनोमिना देखते हैं. थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे इसके बारे में. तो व्हाट इज द ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट. ऑप्टिक्स को हमने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया. पहले कैटेगरी हम कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, डील्स विद द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. सेकेंड हम यहाँ कह सकते हैं वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स. इट डील्स विद द रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन. थर्ड, क्वांटम ऑप्टिक्स. Mainly it will deal with the interaction of the light with the atomic entities. Main here topic comes that the photoelectric, you can say it is just a example. We can say here it is a photoelectric effect. Now we will come our next topic, nature of light. आज तक लाइट के लिए बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन बना हुआ है कि लाइट है क्या. भाई स्टार्ट में हमने बोला लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. उसके लिए फिर बोला विच टाइप ऑफ द एनर्जी? इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इनेबल्स अस टू सी द थिंग्स ऑल अराउंड अस. तब भी लाइट वेव के फॉर्म में है, लाइट पार्टिकल के फॉर्म में है, लाइट दोनों के फॉर्म में है. बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है इस पर. लेकिन आज इस मॉडर्न टाइम में हम इस चीज को बड़े अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं कि व्हाट द एक्चुअल नेचर ऑफ द लाइट इज. हम स्टेप बाय स्टेप इस पे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, फिर अपने हम मेन चैप्टर पर आएंगे. देन नेचर ऑफ लाइट. नेचर ऑफ लाइट, जैसा कि मैंने पहले कहा, देयर इज लॉट ऑफ कंट्राडिक्शन अबाउट द नेचर ऑफ लाइट. हम नेचर ऑफ लाइट को समझने के लिए 3 मेन थ्योरीज की बात करेंगे यहाँ पर. सबसे पहली थ्योरी विच इज गिवन बाय द न्यूटन, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स कॉर्पस्कल्स थ्योरी, और वी कैन से द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट. इसमें न्यूटन ने जो मेन बात कही कि लाइट ट्रेवल्स इन स्पेस विथ अ ग्रेट स्पीड एज अ स्ट्रीम ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कल्स. इन्होंने लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में इमेजिन किया, जिसके हेल्प से हम लोग जो हमारे स्टार्टिंग वेरी कॉमन फिनोमिना थे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, उनको तो एक्सप्लेन कर लिए गए. लेकिन जैसे जैसे हमारी एडवांसमेंट बढ़ी, जो नए फिनोमिनास डिस्कवर हुए, जैसे आप कह सकते हैं डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, इनको कॉर्पस्कल्स थ्योरी एक्सप्लेन करने में टोटली फेल रही, जो बाद में हम वेव थ्योरी के हेल्प से एक्सप्लेन कर पाए. तो सेकंड हमारी यहां पर आती है वेव थ्योरी, और यू कैन से द वेव नेचर ऑफ लाइट.
इसमें क्या कहा गया? लाइट waves are the electromagnetic waves. There is no need of medium. न्यूटन ने क्या कहा था? मीडियम की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वेव थ्योरी क्या बोलती है कि लाइट waves are the electromagnetic wave and there is no need of medium for the propagation of the waves. पूरी बात पलट डाली यहां पर। They can travel in vacuum also. जैसा कि हमने ही पहले ही कह दिया कि मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवल इन द वैक्यूम ऑल्सो। लाइट को यहां पर वेव के फॉर्म में इमेजिन किया गया। द स्पीड ऑफ दीज वेव्स आर इन द एयर आर द वैक्यूम मैक्सिमम इज 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। और जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा की बात करते हैं, आप यहां स्क्रीन पर देख सक रहे होंगे, लाइट, you can see the visible light, a visible wave, electromagnetic waves, for that our sense organs are responsible. जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उनकी वेवलेंथ बहुत ही थोड़ी सी है, स्पेक्ट्रम का बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो हम वेवलेंथ के टर्म में अगर बात करें तो ये बहुत छोटा सा हिस्सा। वेवलेंथ ऑफ visible light is 4 into 10 power minus 7 meter to 8 into 10 power minus 7 meter। आपने ये देखा कि ये विजिबल लाइट जो है, जो हमारे सेंस ऑर्गन देख सकते हैं या हमारी आईज जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा का बहुत छोटा सा हिस्सा है, जिसकी वेवलेंथ मैंने आपको बताई 4 into 10 power minus 7 मीटर टू 8 into 10 power minus 7 मीटर। अब जो तीसरा थ्योरी यहां पर है, जिसको हम लोग मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं, जो बहुत हद तक लाइट के नेचर को डिफाइन करने की कोशिश करता है। अभी हमने दो थ्योरीज की डिस्कशन किया। पार्टिकल नेचर में भी कंट्राडिक्शन ज्यों का त्यों रहा, कुछ बातें वो एक्सप्लेन कर पाए, कुछ बातों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हमने फिर वेव थ्योरी के थ्रू लाइट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, वहां पे भी कंट्राडिक्शन रहा, हमारी सारी बातें एक्सप्लेन नहीं हो पाई। भाई जो कुछ फिनोमिनाज मिले थे, जैसे हमने कहा कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, वो तो एक्सप्लेन हो गए, लेकिन उसके बाद जो आपका कुछ नए फिनोमिनाज आए, वो वेव थ्योरी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। थर्ड थ्योरी रिलेटेड टू द लाइट इज quantum theory of light, which is proposed by Einstein. When the light fall on the surface of the metal like cesium, potassium, electrons are given out. These electrons are called photoelectrons. A phenomena is called photoelectric effect. भाई लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन निकल आए, एक और नई बात डाल दी इन्होंने इसमें। तो इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारी न्यूटन्स कोर्पस्कल्स थ्योरी भी टोटली कोलैप्स कर गई, वेव थ्योरी भी टोटली कोलैप्स कर गई। यहां पर क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में हमने कहा कि व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल लाइक cesium, potassium, electrons are given out. These electrons are called the photoelectrons and phenomena is called photoelectric effect. This explanation is given by the Einstein with the help of the Planck's hypothesis. This is effect explained by the Einstein with the help of Planck theory. Planck said that light consists of small energy packets called photons. बाद में इन्हीं को आइंस्टीन ने क्वांटाज नाम दिया। और जो ये फोटॉन्स हैं, इनकी जो एनर्जी होती है E equals to hv। Here h क्या है इसकी बात कर लेते हैं। Then we can say the Planck constant. H is the Planck constant whose value is 6.6 into 10 power minus 34 joule second, and V
वेलोसिटी ऑफ लाइट। E इक्वल्स टू hv, इसके हेल्प से आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दैट वी कैन सी हियर, hv minus v naught equals to half mv square. Then here hv naught is the amount of energy spent in ejecting the electron from the metal. तो यहां पर hv naught क्या था? hv naught के लिए हमने बोला कि amount of energy spent in ejecting the electron from the surface of the metal. और v क्या थी? मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। दिस इज द थर्ड थ्योरी रिलेटेड टू द लाइट। हमने 3 थ्योरीज पढ़ ली, न्यूटन्स कॉर्पस्कल्स थ्योरी एंड वेव नेचर ऑफ द लाइट, यू कैन से द वेव थ्योरी, एंड आफ्टर दैट द क्वांटम थ्योरी ऑफ द लाइट। अगर इन तीनों थ्योरीज से हम कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें तो जो हम बात पाएंगे, लाइट हैव द डुअल नेचर। नाउ आफ्टर डिस्कसिंग दीज 3 थ्योरीज, हम यहां पर अब कह सकते हैं फिजिकल एक्सपेरिमेंट ओवर द पास्ट 100 of years demonstrated that the light has a dual nature. हमने पार्टिकल नेचर की बात की तो वो कुछ फिनोमिनास को नहीं एक्सप्लेन कर पाए। हमने वेव थ्योरी की बात की तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं एक्सप्लेन कर पाए। बहुत सारी ऐसी बातें आए जो एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो फाइनली जो हमारे 100 of years के एक्सपेरिमेंट है वो हमको इस बात को सजेस्ट करते हैं और हमको ये कंक्लूजन देते हैं कि लाइट हैव द डुअल नेचर। लाइट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव एंड पार्टिकल। Light is not only the wave, light is not only the particle. It gives both behavior. Depending upon the situation, light is in. किस सिचुएशन में लाइट है इस पे डिपेंड करता है और हम उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। Then the light have the dual nature. Modern quantum theory of the light combines both the wave and particle nature of light. Okay, we will come on our next topic. Source of light. Then what is the source of light? For this simply we can say that a body which emits light in all direction is said to be the source of light. जैसे सन चारों तरफ लाइट स्कैटर कर देता है और हर चीज विजिबल हो जाती है। आपके कमरे में जो बल्ब ग्लो कर रहा है, एलईडी ग्लो कर रहा है, दे आर द सोर्स ऑफ लाइट। माइट बी दिस सोर्स ऑफ लाइट कैन बी पॉइंट वन और एन एक्सटेंडेड वन। द सोर्स ऑफ लाइट ऑफ 2 types, luminous source of light, non-luminous source of light. Luminous source of light, those objects which have their own light, they are called luminous source of light. जैसे हमने अपने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही डिस्कशन किया, सन, बर्निंग कैंडल, ग्लोइंग बल्ब, दे आर द ल्यूमिनस सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, दे हैव देयर ओन लाइट। अब ये जो ल्यूमिनस सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, हम इनको 2 कैटेगरी भी कर सकते हैं। आपने अपनी लोअर क्लासेस में इनको पढ़ा भी होगा, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। जैसे आप सन की बात कर लो, दे आर सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। बट जब आप यहाँ पर बात करते हो इलेक्ट्रिक बल्ब की, बर्निंग कैंडल की, दे आर द आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। नाउ आफ्टर दैट द नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। अब जैसे आप अभी जिस कमरे में बैठे हो या मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरे ऊपर लाइट पड़ रही है, this light is coming from the source of light like that LED and other things which are glowing in this room. This is falling on my face and reflecting up to your eyes. तो आपकी आंखों के लिए इसमें सोर्स ऑफ लाइट में क्या है? My face. क्योंकि मेरे चेहरे से लाइट रिफ्लेक्ट होके आपकी आईज तक पहुंच रही है। आप डायरेक्ट इस कमरे में जो LED प्रेजेंट है उनको नहीं देख रहे हैं, आप मेरे फेस को देख रहे हैं।
सो फॉर योर आईज आई एम द सोर्स ऑफ लाइट। तो आप यहां पे कह सकते हो कि एन ऑब्जेक्ट विच एमिट्स और रिफ्लेक्ट्स द लाइट अप टू योर आईज इज सोर्स ऑफ लाइट। या तो वो एमिट करे डायरेक्टली आपकी आईज तक, या किसी ऑब्जेक्ट से लाइट जब रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक होके आपके आईज तक पहुंच रही है तो आपके आईज के लिए वो ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट है। अब जैसे आप कह सकते हो कि सर ये क्या बात हुई, इस कमरे में जो सोर्स ऑफ लाइट है लाइक दैट एलईडी बल्ब जो ग्लो कर रहे हैं, आप उनको नहीं देख रहे हो, आप मुझको देख रहे हो। उनसे जो लाइट आ रही है दैट इज फॉलिंग ऑन माई बॉडी एंड रिफ्लेक्टिंग अप टू योर आईज, देन यू आर एबल टू सी मी। Then for your eyes, my body, my face is the source of light. Okay? Then the non-luminous source of light which have not their own light, but they are visible when the light falls on them and they reflects the light up to our eyes. जैसे आपके कमरे में जितने भी ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं उन पे जब लाइट पड़ रही है और लाइट रिफ्लेक्ट होके आपके आईज तक पहुंच रही है, तब आप उन सारे ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं। आगे मीडियम ऑफ लाइट, substances through which light propagates or tends to propagate is called the medium of light. हमने बड़ी सिंपल और जर्नल वे में बोला, सबस्टेंसेस थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट और टेंड्स टू प्रोपोगेट आर कॉल्ड मीडियम ऑफ लाइट। इसको भी हम यहाँ तीन कैटेगरी में कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम बॉडीज दैट अलाउस लाइट पास थ्रू देम, ट्रांसमिट लाइट थ्रू देम आर कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ लाइट। भाई ग्लास, एयर, आराम से लाइट इनसे पास हो रही है, दे आर द ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ लाइट। आफ्टर दैट ट्रांसल्यूसेंट मीडियम ऑफ लाइट। जैसे कि आप यहां पे कह सकते हो बॉडीज दैट कैन ट्रांसमिट ओनली द पार्ट ऑफ लाइट, पूरी तरीके से नहीं ट्रांसमिट होने दे रहे हैं। बॉडीज दैट कैन ट्रांसमिट ओनली द पार्ट ऑफ लाइट आर कॉल्ड द ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे आप यहां पर नाम ले सकते हैं पैराफिन वैक्स, ग्रीज्ड पेपर, पेपर में थोड़ा सा ऑयल लग जाए और उस पे से आप देखते हो थोड़ी बहुत लाइट पास होती है। जब आप बहुत छोटी क्लासेस में रहे होंगे तो फन में ये काम तो जरूर किया होगा। हम लोग कभी कभी हल्का सा ऑयल या कुछ ग्रीज या कुछ ऐसी चीज़ें पेपर पे लगा देते थे और अपने आइज के सामने करके सेमी ट्रांसपेरेंट बना के उससे देखते थे। दैट इज योर ट्रांसल्यूसेंट मीडियम ऑफ लाइट। ट्रांसल्यूसेंट मीडियम में हम यहाँ एग्जाम्पल ले रख सकते हैं फॉरेस्टेड ग्राउंड ग्लास, ग्रीज्ड पेपर, पैराफिन वैक्स। नेक्स्ट ओपेक ऑब्जेक्ट्स जो बिल्कुल लाइट को नहीं पास होने देंगे, शैडो फॉर्म कर देंगे। बॉडीज दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर सेड टू बी द ओपेक ऑब्जेक्ट्स। बिल्डिंग, स्टोन, ब्लैकबोर्ड, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आपके आसपास जिनको आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये अपने से लाइट पास नहीं होने देंगे और व्हेन द लाइट विल फॉल ऑन देम द शैडो विल फॉर्म। रेक्टिलाइनर प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट। अभी क्लास 10 तक तो हम यही बात लेके चलेंगे कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। हम क्लास 12 में जब जाएंगे तो वहां पे कुछ ऐसे फिनोमिनाज मिलेंगे जहां पे हम लोग इस बात को भी बोलेंगे कि लाइट कैन बेंड, बट अभी हम उस फिनोमिना पे बात नहीं करेंगे। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन वैक्यूम or in the air with the velocity of 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर तो हम लोग यही बात लेके चलेंगे कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। नाउ बिहेवियर ऑफ द लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम्स।
जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है और उसका जो इंटरफेस है दोनों मीडियम्स पे, वहां पे लाइट का क्या बिहेवियर रहता है, थोड़ा सा इस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। नाउ when the light travels in one medium falls on the surface of a second medium, then these few changes comes first। हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट turned into the first medium। यहां आप स्क्रीन पर फिगर बन गया होगा, आप देख पा रहे होंगे, लाइट हैज कम एंड इट इज टर्न्ड बैक इनटू द सेम मीडियम। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। सेकेंड पॉइंट, अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट इन द transmitted into, second point, part of the light transmitted into the second medium along changed the direction, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो गया उसका। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। आपकी लाइट आई, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज्ड direction, with the changed direction it will enter into the second medium। एंगल में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, सेम रेक्टिलाइनर पाथ नहीं रह जाएगा, थोड़ा सा पाथ में डिफ्लेक्शन आ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होगा उस इंटरफेस पे, द रिमेनिंग third part of the light energy is absorbed by the second medium। This is called absorption of light। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आगे हम लोग इस चैप्टर में इस चीज को डिस्कस भी करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि मेरे पीछे आपको ग्रीन बैकग्राउंड दिख रहा होगा, मेरी शर्ट लाइट ब्लू दिख रही होगी, क्यों ये ग्रीन क्यों दिखा, मेरी शर्ट लाइट ब्लू क्यों दिखी? इसका सिंपल सा है, आपने अपनी लोअर क्लास में पढ़ा होगा, व्हाइट लाइट इज नॉट एनी लाइट, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। न्यूटन डिस्क के बारे में वहां पे बताया होगा, न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने एक डिस्क ली, उस पे 7 कलर किया और फिर उसको रोटेट करना शुरू किया। व्हेन दैट डिस्क हैज रीच्ड ऑन इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम स्पीड, तो देखा सारे कलर डिसअपीयर हो गए, सिर्फ व्हाइट कलर की डिस्क दिखने लगी। तो न्यूटन ने बोला कि व्हाइट लाइट इज नॉट एनी लाइट, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। सो when the light is falling on my shirt, then this particular object is absorbing all the color of light, only reflecting blue color light, which is reaching up to your eyes and you are able to see only the blue color। That's why my shirt is blue in color। Background is green because it is absorbing all the colors of the light, only reflecting the green color light। That's why it is appearing green। ये रहे कुछ कॉमन फिनोमिना जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर इनमें आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमको अपना बता सकते हैं, कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, उनको आप पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। हम आने वाली वीडियोज में उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। टिल देन, जय हिंद।